মানুষ কিভাবে দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে? শ্রী অরবিন্দের জন্মসার্ধ শতবর্ষে বহু কর্মসূচি ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের। মানুষ কিভাবে নিজের ভিতরে সৌন্দর্যকে বিকাশ ঘটিয়ে দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে তার সঠিক দিশা দেখিয়ে গিয়েছেন শ্রী অরবিন্দ। আজকের এই অশান্তময় পৃথিবীতে বড়ই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে শ্রী অরবিন্দের দর্শন। নিজের অন্তরের আত্মশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে মানুষ কিভাবে নিজেকে আরও উন্নততর করে তুলতে পারে তা জানা যায় শ্রী অরবিন্দকে নিজের ভেতর থেকে গ্রহণ করলে। আর শ্রী অরবিন্দের সেই আলোর পথ নিয়েই নিয়মিত আলোচনা হয়ে চলেছে শিলিগুড়ি মিলনপল্লীর লাইফ ডিভাইন ফাউন্ডেশনে। বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গোলেচা শ্রী অরবিন্দের জন্ম সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষে এইসব কথা জানিয়েছেন খবরের ঘণ্টাকে। আগামী 15ই আগস্ট দেশের স্বাধীনতার 75তম বর্ষপূর্তি এবং শ্রী অরবিন্দের জন্ম সার্ধ শতবর্ষ। 15ই আগস্ট শ্রী অরবিন্দের জন্মদিন। এই উপলক্ষে শিলিগুড়ি মিলনপল্লী লাইফ ডিভাইন ফাউন্ডেশনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সঞ্জয়বাবু জানিয়েছেন, শ্রী অরবিন্দের জন্ম সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষে তারা ইংরেজি, হিন্দি ও বাংলা ভাষায় বই প্রকাশ করতে চলেছেন। শ্রী অরবিন্দ সম্পর্কে বহু অজানা কথা, বহু অজানা তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে চলেছে ওই বইগুলি। 15ই আগস্ট বইগুলির আবরণ উন্মোচন হবে। যারা বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দ, দেশপ্রেমিক শ্রী অরবিন্দ, মহামানব শ্রী অরবিন্দ, সাহিত্যিক শ্রী অরবিন্দ, দার্শনিক শ্রী অরবিন্দ, অধ্যাত্ম সাধক শ্রী অরবিন্দ সম্পর্কে জানতে চান, তারা সেই বইগুলোর দিকে নজর রাখলেই বহু কিছু জানতে পারবেন। 15ই আগস্ট তারা শ্রী অরবিন্দ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর আসরেরও আয়োজন করেছেন। এভাবে সারা বছর ধরেই তাদের শ্রী অরবিন্দ বিষয়ক অনুষ্ঠান হবে বলে সঞ্জয়বাবু জানিয়েছেন। বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ করেন সঞ্জয়বাবু। শিল্প প্রতিষ্ঠানেরও তিনি কর্ণধার। কিন্তু সব কাজের ফাঁকেই তিনি শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রীমার দর্শনকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করে চলেছেন। চলুন শোনা যাক শ্রী অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয়বাবু কি বললেন। नमस्कार। श्री अरविंदो का जन्म दिवस 15 अगस्त ही है और हमारे भारतवर्ष का स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त है। श्री अरविंद से जब अनुरोध किया गया 15 अगस्त के दिन, जब भारत स्वतंत्र हुआ, कि आपको एक संवाद देना है, एक मैसेज देना है देशवासियों के नाम से, तो श्री अरविंद ने कहा कि August 15th is the birthday of free India. It marks for her the end of an old era, the beginning of a new age. But it has a significance not only for us but for Asia and the whole world. For it signifies the entry into the comity of nations of a new power with untold potentialities, which has a great part to play in determining the political, social, cultural and spiritual future of humanity. श्री अरविंद ने कहा कि भारत देश की स्वतंत्रता केवल भारत के लिए एक घटना नहीं है, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के लिए, संपूर्ण संसार के लिए एक महान घटना है, क्योंकि एक आध्यात्मिक भविष्य जो है, जो सारे संसार का, संपूर्ण सृष्टि का आध्यात्मिक भविष्य जो है, वो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। श्री अरविंद ने योग के माध्यम से जितने भी स्वयं के जीवन में वास्तविक प्रयोग किए और उनसे अपने अंदर जो परिवर्तन स्थापित करके हमारे लिए एक विशाल अनुभवों का सिलसिला उनके विभिन्न लेखों में, उनकी लेखनी में
हमारे लिए रखा, जिसको अध्ययन करके हम सभी अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं, और जिसकी आवश्यकता आज की मानवता को बहुत ज़्यादा है। जिस प्रकार से केवल मानवीय सुविधा के लिए विज्ञान लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी सारी मानवीय सुविधाओं के लिए लगी हुई है, और उसका उपयोग कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए चल रहा है, इससे मानव जाति का विशेष अच्छा हो नहीं सकता। ये अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। हम चौर देख रहे हैं किस प्रकार की सफरिंग बढ़ रही है। ऐसे समय पर श्री अरविंद का मार्गदर्शन हम सभी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और इसी पर हम डिवाइन लाइफ फाउंडेशन के माध्यम से लगातार काम करते रहते हैं। हमारा मोटो है रिसर्च एंड प्रैक्टिस ऑफ श्री अरविंदोज इंटेग्रल योगा। पूर्ण योग जो श्री अरविंद ने मानवता के समक्ष प्रस्तुत किया, उसके ऊपर रिसर्च करना और उसका अभ्यास करना, ये हमारे इस समूह का विशेष उद्देश्य है, जिसमें हम लगातार विभिन्न हमारी गतिविधियों के माध्यम से लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो इस 75वें हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूरा भारतवर्ष अमृत महोत्सव मना रहा है, और यही दिन है जब श्री अरविंद के जन्म को 150 साल पूरे होंगे, जिसे संपूर्ण भारत एक विशेष उत्साह के साथ मना रहा है, और हम भी इसमें सहयोग के रूप में लगे हुए हैं। हम भी पूरे उत्साह के साथ इस दिन के महत्व को हमारे समाज के समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे, और इसके लिए हमने विभिन्न गतिविधियों को अपनाया है। जैसे हमने एक सोवेनिर प्रस्तुत करने की तैयारी हमने करी है, जिसमें बहुत सारे श्री अरविंद के ऐसे लेख जो हमारे समक्ष उनके परिचय को रखते हैं, और उनके विभिन्न अनुरागियों द्वारा जो गवेषणा करके और उनके बारे में लिखा है, उनकी विभिन्न जो उनके डायमेंशंस थे उनके ऊपर लिखा है, उनको भी हमने वहाँ संकलित किया है, जिससे कि सुधी पाठक जिनको भी दिलचस्पी होगी, जो थोड़ा सा भी श्री अरविंद के बारे में जानना चाहेंगे, उनके लिए वो बहुत सुविधाजनक होगा इस प्रकार के लेखों का संकलन पढ़ना। और इसकी संपूर्ण तैयारी हो चुकी है, जिसे हम 15 अगस्त के दिन विमोचन करेंगे। हमारे 15 अगस्त के विशेष कार्यक्रम के रूप में हमारे सेंटर में भी सुबह से शाम तक बहुत खूबसूरत कार्यक्रमों का आयोजन हमने किया है, जिसमें जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें एक विशेष परिचय मिलेगा श्री अरविंद के विषय में, उनके साधना के विषय में, उनके कार्यों के विषय में, और हमें उनसे क्या लेना चाहिए इस विषय में। क्वेश्चन आंसर सेशंस भी रहेंगे दिन में, जिसमें अगर कोई प्रश्न करेगा तो उसके उत्तर कोशिश करके दिए जाएंगे। हमारा एक प्रोजेक्ट ऑरोग्राम भी चल रहा है, जहाँ पर 15 अगस्त के पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसकी सूचना समय समय पर सभी को दी जा रही है, और 15 अगस्त को भी वहाँ पर एक सुंदर कार्यक्रम की व्यवस्था हम कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि ये केवल इस बात का मैनिफेस्टेशन रहेगा कि अब तक हमने श्री अरविंद को कितना समझा, क्योंकि श्री अरविंद वास्तव में कितने महान है, इसको समझने के लिए हमें और भी बहुत सारे प्रयास करने होंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे भीतर हृदय में उनके प्रति जो भाव अब तक अंकित हो पाए हैं, उन भावों को हम अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, डिवाइन लाइफ फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर हम प्रस्तुत करेंगे। समय समय पर हम गोष्ठियाँ करते हैं, आपस में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं कि किस प्रकार श्री अरविंद ने हमारे आज के वर्तमान मानवीय जीवन के विभिन्न समस्याओं पर किस प्रकार से क्या कहा है, और उसको हम अपना करके, उनके उपायों को अपना करके अपने जीवन को कैसे दिव्यतर बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अच्छे और बुरे का सवाल नहीं है। श्री अरविंद ने कहा कि तुम्हें दिव्य बनना है, यू हैव टू बिकम डिवाइन।
उन्होंने कहा कि मानव मनुष्य जो है वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी मनुष्य मनुष्यत्व को पूर्णतः उसने प्राप्त नहीं किया है। इसलिए हम सबको मिलकर चैतन्य होकर के, क्योंकि श्री अरविंद ने कहा कि मानव को संपूर्ण रूप से चैतन्य होकर के अपने इवोल्यूशन को कारगर करना होगा, जिससे कि वो मनुष्यत्व को प्राप्त कर सके, देवत्व की तरफ बढ़ सके और एक स्वर्ग को इस धरती पर उतारा जा सके। तो इस प्रकार के उनके चिंतन को सामने रख कर के हम सब चल रहे हैं और आशा करते हैं कि जो भी इस प्रकार के चिंतन से जुड़ेंगे अपने अपने स्थिति से, अपने अपने प्रकार से, उन्हें अवश्य एक नया जीवन का पर्पस मिलेगा, नया एम मिलेगा। और जैसा कि मदर ने एक बार कहा कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर एम, तो हम सब यही प्रार्थना करना चाहेंगे आज के दिन कि 15 अगस्त के दिन हम सब लोग संकल्प करें, हम संकल्प कर पाएँ कि हम अपने जीवन का उद्देश्य अपने देवत्व को प्राप्त करने का रखेंगे, ताकि अपना जीवन, हम सबका जीवन एक नई गति में चले, एक बेहतर गति में चले। श्री अरविंद ने आज चारों ओर जो स्ट्रेस नज़र आ रहा है उसका एक कारण बताया कि हम केवल अपने अहंकार के लिए जीवन जी रहे हैं, और जब तक अहंकार के लिए जीवन जिएंगे हमारा जीवन अपूर्ण रहेगा। और हमारे भीतर का जो वह तत्व जो आत्मीय जीवन जीना चाहता है, वो तत्व जब तक परेशान रहेगा कि उसके बाहरी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उसका मन, प्राण, शरीर आत्मा के रास्ते पर नहीं चल पाए, देवत्व के रास्ते पर नहीं चल पाए, तो उसके अंदर एक एनिमली जिसको कहते हैं, एक प्रकार का संघर्ष, जो आंतरिक संघर्ष है, अब वो बिल्कुल मुखर रूप से हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। तो जितनी जल्दी हम अपने आंतरिक आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करेंगे, उतनी ही जल्दी हम अपने हर प्रकार के स्ट्रेस से ऊपर उठ सकते हैं। हमने बिल्कुल अच्छी तरह से देख लिया है कि बाहरी सुखों को कितना ही हम इकट्ठा करें, बाहरी सुविधाओं को कितना ही हम इकट्ठा करें, हमारे जीवन में तनाव से मुक्ति मिलना मुश्किल है। इसलिए अब आंतरिक सुख के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है, और इसके लिए श्री अरविंद से महान मार्गदर्शन और कोई नहीं दे सकता। आज की जो मानवीय मन की जो कैपेसिटी है उसको उत्तर देने के, क्योंकि आज के दिन हम बौद्धिक रूप से विशाल हो गए हैं और हमें तर्क पर ही हमको समझाना जरूरी होता है, और तर्क के साथ समझाने में श्री अरविंद से बेहतर और कोई नहीं है। इसलिए जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं वो श्री अरविंद को अप्रोच करें और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांगे, तो बहुत जल्दी हर प्रकार की समस्या का समाधान हमको मिल सकता है। थैंक यू।